السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ شہر کے تاپور علاقے میں واقع ہلدی رام سویٹ ہاؤس میں زائد المیعاد یعنی کہ ایکسپائری ڈیٹ کی غذائی اشیاء فروخت کیے جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں، جس پر صارفین میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ متاثرہ صارفین کا الزام ہے کہ دکان انتظامیہ نے آفر کے نام پر تاریخ میعاد ختم ہو چکی مٹھائیاں اور دیگر غذائی اشیاء کم قیمت پر فروخت کی۔ کئی صارفین نے بتایا ہے کہ خریدی گئی مٹھائیاں خراب حالت میں تھی، جس کے باعث انہیں شدید ذہنی کیفیت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعے سے متاثرہ افراد نے آفر کے نام پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے شکایت وصول کرتے ہوئے معاملے کی جانچ شروع کر دی۔ واقعہ مقامی سطح پر بحث کا موضوع بن گیا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوڈ سیفٹی حکام فوری طور پر دکان کا معائنہ کرے اور اگر الزامات درست ثابت ہوں تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ صارفین کی صحت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کھلواڑ نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے پیر کو آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے خلاف دائر ویڈیو کے معاملے میں کارروائی کی درخواستوں پر سماعت سے انکار کر دیا اور درخواست گزاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی شکایت کی ازالے کے لیے گوہاٹی ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ یہ درخواستیں ایک ایسی وائرل ویڈیو کے تعلق سے دائر کی گئی تھی جس میں مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ کو اقلیتی برادری کے افراد کی طرف رائفل سے نشانہ لے کر فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ چیف جسٹس سری کانت کی سربراہی میں قائم بینچ، جس میں جسٹس جوئی مالیا باگچی اور جسٹس وپل ایم پانچولی شامل تھے، نے درخواست گزاروں سے سوال کیا کہ انہوں نے پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ کے اختیار کو کمزور نہ کیا جائے اور تمام فریقین کو آئینی اخلاقیات کے حدود میں رہتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے وقت میں جب انتخابات قریب ہوں۔ بینچ نے مزید ریمارکس دیے کہ یہ ایک تشویشناک رجحان بنتا جا رہا ہے کہ ہر معاملہ براہ راست اعلیٰ ترین عدالت میں لایا جا رہا ہے، جبکہ پہلے ہی ماحولیاتی اور تجارتی نوعیت کے کئی مقدمات ہائی کورٹ سے منتقل ہو چکے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہا کہ وہ اس معاملے کی سماعت کو تیز کریں۔ تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر میں واقع جلال پور گاؤں کی مسجد میں پیر 16 فروری کو نماز کے لیے آنے والے افراد اس وقت شدید صدمے میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے مسجد کے توڑ پھوڑ اور قرآن پاک کی بے حرمتی دیکھی۔ اطلاعات کے مطابق چند نامعلوم افراد عبادت گاہ میں داخل ہوئے، دیواروں، کھڑکیوں کے شیشوں اور واش روم کے دروازوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے کئی نسخے مسجد کے احاطے میں بکھرے ہوئے پائے گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں تشویش کی ابتدا پیدا ہو گئی، جبکہ پولیس نے معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جگتیال بلدیہ چیئرپرسن کی حیثیت سے ایس وائی سریواس اور وائس چیئرمین زینت پروین زوجہ منیر الدین منا کا بذریعہ ووٹ انتخاب۔ سابق بلدیہ چیئرمین اڈوالا جیوتی لکشمن نے انہیں چیئرپرسن منتخب نہ کرنے پر مایوس اور ناراض ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا اور چیئرپرسن کے انتخاب کے دوران ہی وہ حلف برداری تقریب سے باہر نکل کر چلی گئی۔ بلدیہ جگتیال میں حالیہ دنوں نومنتخب کونسلرز اور چیئرپرسن اور وائس چیئرمین کے انتخاب کے لیے آج حلف برداری تقریب منعقد ہوئی تھی۔ کانگریس کے تمام منتخب کونسلرز حیدرآباد میں 2 علیحدہ کیمپوں سے بس کے ذریعے بلدیہ جگتیال پہنچے اور جیون ریڈی کا ایک گروپ اور سنجے کمار MLA کا ایک گروپ ہائی کمان کی جانب سے چیئر پرسن کے انتخاب کا نام سیل کور کے ذریعے ڈسٹرکٹ کانگریس پارٹی صدر نندیا کے ذریعے الیکشن آفیسر کے حوالے کیا گیا اور کانگریس پارٹی 2 گروپ سے منتخب 23 کونسلرز اور دیگر آزاد کونسلرز اور 2 MIM پارٹی کے جملہ 39 کونسلرز نے چیئر پرسن اور وائس چیئرمین کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ BRS منتخب 4 کونسلرز نے ووٹنگ سے دور رہے۔ BJP کے منتخب 6 کونسلرز نے BJP کے کونسلر کنڈا ارون لکشمن کے حق میں چیئر پرسن کے لیے وپ جاری کیا اور 5 ہی کونسلرز نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ ایس وائی سریواس نے حلف لیا۔ بعد ازاں کانگریس پارٹی ہائی کمان اور ریاستی چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر لکشمن کمار اور رکن اسمبلی M سنجے کمار، ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی صدر نندیا تمام کونسلرز کا شکریہ ادا کیا اور رکن اسمبلی نے تمام کو مبارکبادی پیش کی۔ خواجہ کمال الدین وارڈ نمبر 17 سے کانگریس پارٹی سے شاندار کامیابی حاصل کی اور آج بلدیہ جگتیال میں حلف برداری پروگرام میں حلف لینے کے بعد سیاست ٹی وی کے نمائندے مجاہد عادل سے بات کرتے ہوئے وارڈ کی عوام کا شکریہ ادا کیا اور عوام کی خدمت اور وارڈ کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کا تیقن دیا۔
जगतियाल में राजीव मैंगो मार्केट से वाबस्ता ट्रेडर्स जगतियाल मैंगो एसोसिएशन के इंतखाबात मोहम्मद मोइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर दूसरी मरतबा सदर मुंतखब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मकबूल और नायब सदूर नज़ीर अहमद सैयद शफी के अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल रहीम और खाजन सैयद अकील मुंतखब हुए, जबकि मुशीर के तौर पर असद अली, राशिद अहमद, मोहम्मद बासित, सैयद आरिफ का इंतखाब अमल में लाया गया। मोइन और तमाम की मुत्तफ़िक़ा इंतखाब पर मैंगो एसोसिएशन जगतियाल और दीगर ने मुबारकबादी पेश की। मुंतखब कमेटी ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। एसोसिएशन की तरक्की और तमाम मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात का भी तयक़्क़ुन दिया। मोहम्मद रज़ियुद्दीन वार्ड नंबर 30 से मजलिस पार्टी से दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल कर ली। इस मौके पर आज हलफ बर्दारी के बाद सियासत टीवी के नुमाइंदे से बात की और अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। बांसवाड़ा बल्दिया के 19 वार्डों में से 11 वार्डों पर कांग्रेस उम्मीदवार मुंतखब हुए। एक पर मजलिस, 3 नशीस्तों पर 42 और 3 पर बीजेपी और एक आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए। आज बांसवाड़ा म्यूनिसिपल ऑफिस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब किया गया। बांसवाड़ा सब कलेक्टर ने इसकी कार्रवाई चलाई। चेयरमैन की हैसियत से कांग्रेस के उम्मीदवार कासूरा विजया, वाइस चेयरमैन की हैसियत से रेशमा एजाज का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम मुंतखब उम्मीदवार और मजलिस के एक उम्मीदवार ने हलफ उठाया। मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सब कलेक्टर डॉक्टर करणमाई और साबिक निजामाबाद सोसाइटी बैंक चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने मुबारकबादी दी। निजामाबाद में बरदी कॉर्पोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वजीर सिविल सप्लाईज और निजामाबाद पार्लिमानी हलके के इंचार्ज उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस भवन में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, रियासत की अवाम ने तारीख साज फैसला दिया और बल्दियाती इदारों में कांग्रेस पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जगतियाल मैंगो ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन जगतियाल के इंतखाबात चिलगुल राजीव गांधी मार्केट अमल में लाए गए। मोहम्मद अमीनुद्दीन दूसरी मियाद के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जलील और खाजन एम मलेशम का इंतखाब अमल में लाया गया। हलफ बर्दारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। एसोसिएशन में तकरीबन 60 अरकान मौजूद थे। जगतियाल बल्दिया चेयरपर्सन के इंतखाब में मजलिस पार्टी के 2 काउंसलर रज़ियुद्दीन और डॉक्टर अय्यूब खान की जानिब से तायीद करने पर हलफ बर्दारी तकरीब के बाद रुकने असम्बली जगतियाल एम सैयद कुमार ने दोनों से मुलाकात की और इज़हार तशक्कुर किया और दोनों को ही मुबारकबादी पेश की। तांडूर की 36 रुकनी बल्दिया के नवमुंतखब उम्मीदवारों में एक खातून उम्मीदवार को छोड़कर तमाम उम्मीदवारों ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस मौके पर काउंसिलर के खुसूसी इजलास में आज पी नीरजा बाल रेड्डी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदरनशीन बल्दिया मुंतखब कर लिया गया। अब्दुल रज़्ज़ाक को नायब सदरनशीन बल्दिया के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। वाज़ेह है कि नीरजा 12वें वार्ड की काउंसिलर जबकि अब्दुल रज़्ज़ाक 29वें वार्ड के काउंसिलर मुंतखब हुए थे। सदरनशीन बल्दिया और नायब सदरनशीन बल्दिया के इंतखाबी खुसूसी ओहदेदार और जिले रेवेन्यू ऑफिसर मंगी लाल ने हलफ उठाया और इंतखाबी असनदात पेश किए। जिले मंचियाल के चिनूर बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया। वाज़ेह है कि 18 रुकनी बल्दिया में कांग्रेस 11 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि 4 BRS, 2 बीजेपी और एक आजाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए थे। आज तमाम काउंसलर्स को हलफ दिलाया गया। कांग्रेस के रुकन पेदिनीति पद्मा को म्यूनिसिपल सदरनशीन की हैसियत से हलफ दिलाया गया। नायब सदरनशीन की हैसियत से कांग्रेस रुकन विनय कुमार को मुंतखब किया गया। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर पुलिस स्टेशन में आज मजलिस टाउन सेक्रेटरी जावेद मलनास ने अपने हमरा चारमीनार के रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार, आबिद अहमद और MIM अराकीन के साथ मिलकर कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर कागज नगर बल्दिया वार्ड नंबर 3 से कामयाब होने वाले MIM पार्टी बल्दिया उम्मीदवार आलिया बेगम की गुमशुदगी और ब्याज कायदीन की जानिब से अगवा करने की शिकायत दर्ज करवाई। भैंसा बल्दिया की सियासी तारीख ने करवट ले ली। बरसों से बल्दिया पर मजलिस का कब्जा रहा। पहली मरतबा मजलिस के एक बागी उम्मीदवार इदरीस बेग व कांग्रेस के हरकियाती नौजवान कायद शेख नोमान ने बहुत ही मनसूबाबंदी से इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इदरीस बेग ने अपनी अहलिया को कामयाब करवा लिया और 2 आजाद उम्मीदवारों को भी कामयाबी दिलवाई, जबकि भैंसा बल्दिया मजलिस को 12 हल्कों पर कामयाबी मिली। आजाद 7 पर कामयाब हुए, 6 पर बीजेपी कामयाब हुई, जबकि एक वार्ड से कांग्रेस में कामयाब रही। में आखिर तक सदरनशीन बल्दिया के ओहदे पर काफी रसाकशी देखी गई, ताहम
2 दिन के मुसलसल तजस्सुस आज उस वक्त खत्म हो गया जब टी दत्तात्रेय आजाद उम्मीदवार को इदरीस बेग और बीजेपी की कामयाब हिकमत अमली से सदरनशीन बल्दिया मुंतखब कर लिया गया, जबकि इदरीस बेग की अहलिया को नायब सदरनशीन बल्दिया बनाया गया। इदरीस बेग ने सियासत न्यूज को बताया कि आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि सदरनशीन और नायब सदरनशीन के इंतखाब के बाद भैंसा की फिजाओं में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के फलक शिकाफ नारे गूंज रहे हैं। मुस्तकबिल में भैंसा अमन का गहवारा बनने का ये इंतखाब हिंदू मुस्लिम को खरीद से खरीद करते हुए सेकुलरिज्म की सिमत जाएगा। भैंसा के तमाम तबकात से मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि भैंसा के सियासी करवट मुत्तहिदा जिला बल्कि रियासत तेलंगाना में एक नए बाब की शुरुआत है। कामारेड्डी बार एसोसिएशन के सदर नंदा रमेश ने रंगारेड्डी जिला अदालत के वकील मोहम्मद खदीर के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सजा का मुतालबा किया। जनगांव मजलिस बल्दिया सदरनशीन और नायब सदरनशीन के ओहदे के इंतखाबात कल तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। हलफ बर्दारी की तकरीब जनगांव मजलिस बल्दिया के हाल में मुनक्किद हुई थी। जनगांव मजलिस बल्दिया के जुमला 30 वार्ड में असेंबली काउंसलर्स हैं। इसी तरह BIS पार्टी के पास भी 13 काउंसलर्स है, 12 कांग्रेस के हैं और एक CPM जुमला कांग्रेस मुत्तहिदा के पास 13 काउंसलर्स है। जिले के बियासीबाद के कागज नगर बल्दिया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए रायशुमारी कोरम न रहने की वजह से आज मुलतवी कर दी गई। इस मौके पर जिले SP पुलिस नितिका पंत IPS की हिदायत के मुताबिक मुकामी DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर कुमार स्वामी, सर्कल इंस्पेक्टर संतोष के अलावा स्पेशल पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर बल्दिया कागज नगर के रायशुमारी के दौरान कागज नगर के अतराफ अकनाफ अमन और अमान के लिए भारी बंदोबस्त किया गया। सदरनशीन बल्दिया निर्मल की हैसियत से हलफ लेने के बाद उपाला काव्या और उनके शोहर उपाला गणेश नायब सदरनशीन बल्दिया को सियासी कायदीन की बड़ी तादाद में बशमूल 11 अराकीन बल्दिया को भी मुबारकबादी पेश की गई, जिसमें काबिल जिक्र डॉक्टर S वेणुगोपालचारी, मरकजी वजीर केसरी राव, इंचार्ज निर्मल कांग्रेस हल्के असेंबली सैयद अर्जुमंद अली, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन तौहीदुद्दीन रफू, इमरानुल्लाह और तमाम खवातीन अराकीन बल्दिया को मुबारकबादी पेश करते नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। जबकि तौहीदुद्दीन रफू को उनके वार्ड में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शॉल पोशी और गुलपोशी करते मुबारकबादी पेश की, जिनमें काबिल जिक्र शेख जब्बार NRI, जिन्होंने तौहीदुद्दीन रफू की कामयाबी के लिए काफी मेहनत की थी। रफू ने तमाम वार्ड के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया। जिले के भी आसिफाबाद के बल्दिया चेयरमैन की हैसियत से आकाश और डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से मुस्लिम नौजवान उभरते हुए कायद मोहम्मद अहमद को मुंतखब किया गया। सदरनशीन बल्दिया निर्मल की हैसियत से उपाला काव्या ने हलफ लिया। उनके शौहर मिस्टर उपाला गणेश ने बहैसियत नायब सदरनशीन हलफ लिया। निर्मल की सियासी तारीख में यह पहला मौका है कि बीवी सदरनशीन बल्दिया और शौहर नायब सदरनशीन बल्दिया है। निर्मल के सदरनशीन का ओहदा खातून के लिए महफूज था। 42 रुकनी बल्दिया निर्मल में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली थी। 24 अराकीन बल्दिया कांग्रेस के मुंतखब हुए, जबकि BJP ने जुमला 13 वार्ड पर कामयाबी हासिल की। मजलिस को 3 वार्ड पर कामयाबी मिली, जबकि BRS ने 2 वार्ड पर कामयाबी दर्ज की। गुलजार मार्केट के दोनों वार्ड में भी कांग्रेस से मियाबी ने दूसरी मरतबा कामयाबी दर्ज की। तौहीदुद्दीन उर्फ रफू और उनकी अहलिया आयशा कौसर ने भी शानदार कामयाबी हासिल कर ली और तारीख रकम की। इस तरह बल्दिया निर्मल में 2 जोड़ों ने अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। हलफ बर्दारी के बाद इनकी तस्वीर कशी के मौके पर सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। इस तरह दोनों तबकात के 2 खानदानों में 2 जोड़ों की कामयाबी काफी दिलचस्प रही। हलफ बर्दारी के मौके पर इंदिरा करण रेड्डी साबिक वजीर जंगलात के सीनियर इंचार्ज हल्का असेंबली कांग्रेस, डॉक्टर S वेणुगोपालचारी साबिक मरकजी वजीर, सैयद अर्जुमंद अली जिले लाइब्रेरी चेयरमैन के अलावा दूसरे मौजूद थे। भैंसा में मस्जिद बल्दिया मजलिस का 10 साल पुराना इख्तिदार खत्म हो गया। आजाद पार्टी उम्मीदवार BJP और दीगर आजाद उम्मीदवार BJP से दत्तू को आजाद पार्टी से इदरीस बेग को बड़े बड़े पद दिए गए हैं, तो दत्तू को चेयरमैन और इदरीस बेग को वाइस चेयरमैन बनाया गया। निजामाबाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य महेश कुमार गौड़ ने आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में सियासत न्यूज से बात करते बताया कि निजामाबाद के मेयर की हैसियत से BC मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली उमा रानी को मेयर की हैसियत से कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुंतखब किया गया है और ये काबिल बासलाहियत खातून है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, मजलिस और कांग्रेस के इत्तेहाद करते मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया गया है। डिप्टी मेयर की हैसियत से मजलिस की
सलमा तहसीन और मेयर की हैसियत से उमा रानी को मुंतखब किया गया है। निजामाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर के ओहदे पर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली 49वें डिवीजन की कॉर्पोरेटर उमा रानी मुंतखब हो गई हैं। इंतखाबी अमल की तकमील के बाद हुक्काम ने उनके मेयर मुंतखब होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मजलिस की कॉर्पोरेटर सलमा तहसीन मुंतखब हुई। जिले के अब्बासियाबाद के कागज नगर में बल्दिया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात आज म्युनिसिपल इलेक्शन मुबस्सी आलोक कुमार और इलेक्शन ऑफिसर लक्ष्मी नारायण और म्युनिसिपल कमिश्नर तिरुपति के ज़ेर निगरानी में बल्दिया चेयरमैन और बल्दिया डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ रायशुमारी होने वाली थी, लेकिन कागज नगर बल्दिया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रायशुमारी के लिए बीआईएस पार्टी के 13 उम्मीदवार और मजलिस के एक उम्मीदवार ने शिरकत की। इस तरह से बल्दिया के कागज नगर के 30 के मुंतमिला सिर्फ 14 उम्मीदवारों ने शिरकत की और रायशुमारी में हिस्सा लिया। नागर करनूल में 9 मुंतखब सदरनशीन नायब सदरनशीन 2 काउंसलर्स की हलफबर्दारी की तकरीब बावक़ार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। सदरनशीन की हैसियत से टी सुनेंद्रा, नायब सदरनशीन की हैसियत से बी रमेश बशमुल तमाम मुंतखब काउंसलर्स ने नागर करनूल कानून के तहत कायम शुदा हिंदुस्तानी आइन पर सच्ची अक़ीदत और वफादारी का इजहार करते हुए हलफ उठाया। अराकीन ने हलफ उठाया कि अपनी जिम्मेदारी और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के दायरे में रहते हुए दयानतदारी से अंजाम देंगे। हलफबर्दारी की तकरीब आरडीओ सुरेश बाबू, म्युनिसिपल कमिश्नर नागिर रेड्डी की निगरानी में मुनक़्क़द हुई। दफ्तर बल्दिया के मैनेजर वेंकटैया ने नौमुंतखब काउंसलर से हलफ दिलवाया। तकरीब में मुक़ामी रुकन असम्बली डॉक्टर राजेश रेड्डी और ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन रमना राव ने भी शिरकत की और मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबादी पेश की। इलेक्शन ऑफिसर व सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव के ज़ेर निगरानी आज बोधन बल्दी काउंसिल के लिए चेयरपर्सन व वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब अमल में लाया गया। नौमुंतखब कांग्रेस पार्टी के काउंसलर दामोदर ने बोधन बल्दिया चेयरपर्सन के लिए श्रीमती टी पद्मा शरत रेड्डी का नाम तजवीज़ किया, जिसकी काउंसलर आदि नारायण ने तायद की। इस तरह वाइस चेयरमैन के लिए काउंसलर शरत रेड्डी कांग्रेस ने मस्जिद पार्टी के काउंसलर मीर इलियास अली का नाम पेश किया। मजलिस के काउंसलर समीर हुसैन ने तायद की। चूंकि चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन के लिए मजीद कोई दूसरा नाम पेश न किए जाने पर सब कलेक्टर बोधन ने टी पद्मा शरत रेड्डी को चेयरपर्सन और मीर इलियास अली को वाइस चेयरमैन के लिए मुंतखब करार दे दिया और चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात से कबल मुंतखब अरकान बल्दिया ने ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। बतौर चेयरपर्सन बल्दिया बोधन टी पद्मा शरत रेड्डी ने आज दूसरी मरतबा जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने मुबारकबादी पेश की। चेयरपर्सन के तौर पर दोबारा मुंतखब होने पर कांग्रेस कायदीन ने खुशी का इजहार किया। ज़हीराबाद मजलिस सदरनशीन बल्दिया इंतखाब मुलतवी, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की अदम शिरकत। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ज़हीराबाद आरडीओ कमीशन बल्दिया ज़हीराबाद म्युनिसिपल सदरनशीन बल्दिया नायब सदरनशीन के इंतखाबात की तमाम तर तैयारी मुकम्मल हो गई थी। सदरनशीन बल्दिया के इंतखाब में बीआईएस बीजेपी रुकन असम्बली के मानिक राव ने शिरकत की। सदरनशीन बल्दिया बीआईएस के 15 अरकान, बीजेपी के 3 रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव वोटों के बशमुल 19 सदरनशीन बल्दिया की तायद मौजूद रहे। वही कांग्रेस और 3 आज़ाद मजलिस के 2 अरकान बल्दिया आज़ाद उम्मीदवारों की अदम शिरकत से तकरीब मुलतवी कर दी गई। बड़े बेआबरू होकर मजलिस बल्दिया से वो निकले। ये बात मजलिस बल्दिया के मुनक़्क़िदा इजलास में सदरनशीन बल्दिया और नायब सदर बल्दिया का इंतखाब अमल में लाया गया। बीजेपी कायदीन पर यह साबित होती है कि बीजेपी आदिलाबाद मजलिस बल्दिया के इंतखाबात में 21 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए सदरनशीन बल्दिया और नायब बल्दिया के जलील क़द्र ओहदा हासिल करने में नाकाम रही। मस्जिद बल्दिया आदिलाबाद में 49 वार्ड के जुमला कांग्रेस पार्टी ने 11 वार्ड, बीआरएस ने 6, मस्जिद के 6 वार्ड पर 5 खवातीन आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। बल्दिया और नायब चेयरमैन के इंतखाबात में कांग्रेस, बीआरएस पार्टी, मजलिस के अलावा आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बल्दिया चेयरमैन के लिए आज़ाद उम्मीदवार 45 वार्ड के अनुषा भंडारी और नायब चेयरमैन के लिए मजलिस के वार्ड नंबर 44 से रोहित के नाम की तायद हिमायत का ऐलान कर दिया। करीमनगर में 2 दिनों से जारी ड्रामाई सूरत-ए-हाल के दरमियान करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिल आखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास मेयर के तौर पर मुंतखब गए, जबकि डिप्टी मेयर भी बीजेपी का है। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास को 34 वोट मिले। कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार आकोला नर्मदा को सिर्फ 21 वोट मिले। 13 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास
मेयर मुंतखब हो गए। करीमनगर के डिप्टी मेयर के तौर पर यादगिरी सुनील राव मुंतखब हुए। बीआरएस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 30 नशिस्तें जीतने के बाद आम ख्याल था कि मेयर की कुर्सी बीजेपी को मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त में सियासी हालात तेजी से बदल गए और कल रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के बयान ने भी सियासी माहौल को गरमा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेयर कौन बनेगा इसका फैसला कल हो जाएगा और इस वक्त दौर में कांग्रेस पार्टी आगे थी। इसके बाद बीजेपी और बंडी संजय के हामियों में बेचैनी बढ़ गई थी, लेकिन आज सूरत हाल पूरी बदल गई। बहरहाल बीजेपी ने करीमनगर कॉरपोरेशन पर अपना परचम लहरा दिया। बिचकुंडा म्यूनिसिपल में चेयरमैन के ओहदे पर सीमा शिटका, वाइस चेयरमैन के ओहदे पर भाग्य लक्ष्मी के इंतखाब के बाद आज रस्म हलफबरदारी की बावखार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नवमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबादी पेश की। जिले महबूबाबाद में मदरसा मिनहाजुल उलूम के ज़ेर एहतमाम जलसे इस्तिक़बाल रमज़ान व इस्लाह मौशरा में उलमा इकराम मुअज़्ज़िज़ान शहर अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तक़रीब के आगाज़ में बानी मदरसा मौलाना अब्दुल लतीफ़ रशीदी की दीनी और समाजी खिदमात को खिराज पेश किया गया। सिरसिल्ला म्यूनिसिपल कौंसिल में बीआईएस को नुमाया कामयाबी मिली। वार्ड नंबर 3 से मुंतखब बीआईएस उम्मीदवार चिंदम कला चक्रपानी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया और दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फायज हुई। इसी तरह बीआरएस से मुंतखब डी संदीप को कौंसिल आरती ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने नई क़यादत को मुबारकबादी पेश की और उम्मीद का इज़हार किया कि वो शहर की हमारी तरक्की के लिए मुसलसल काम करेंगे। वरंगल में अंजुमन हुज्जाज के ज़ेर एहतमाम इस्लामिया कॉलेज में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैंप की सदारत तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने की, जिन्होंने कहा कि रियासती हज कमेटी की जानिब से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं, जिससे इस्तेफादा उठाना चाहिए। डॉक्टर अनिल समद सिद्दीकी ने आज़मीन को नज़्म व ज़ब्त और सब्र तहम्मुल की तलक़ीन की। इस मौके पर 157 आज़मीन हज ने शिरकत की और मनासिक से मुताल्लिक़ अमली तरबियत हासिल की। सिलसिला म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 4 से मुंतखब कौंसिलर लईक सुल्ताना ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब मुकामी बल्दिया दफ्तर में मुनक्किद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ान शहर, पार्टी कारकुना, आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लईक सुल्ताना ज़ौजा मोहम्मद ताजुद्दीन वार्ड नंबर 4 से वाहिद मुस्लिम कौंसिलर मुंतखब हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया था। हलफ बर्दारी के बाद लईक सुल्ताना ने कहा कि वो बिला तफरीक वार्ड के तमाम अफराद की खिदमत करेंगी। मेदराम जाता के दौरान पेश आए संगीन वाक़े पर निज़ामाबाद जिले जॉइंट एक्शन कमेटी ने मजम्मत करते हुए मजहबी मुनाफिरत को हवा देने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कमेटी के मुताबिक एक मुस्लिम नौजवान छोटे ताजी शेख वली जो खोआबन फरोख्त कर रहा था को चंद अफराद ने यूट्यूब चैनल के नाम बयासा करते इसकी अशिया खुर्दनी को गैर मियारी करार दिया और फिर इसे हिरासत किया। कमेटी अरकान ने कहा कि इस तरह के इक़दाम समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जिले के बियासीबाद के सीरपुटौर में मोहतरमा वी नागमनी ने अपने हमरा तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन, एमपीडीओ सत्यानारायण के अलावा मुकामी उद्योगों के साथ मिलकर सरपंच वी नागमनी ने 40 लाख रुपए की लागत से फूड ग्रीन बिल्डिंग के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। जगतियाल कांग्रेस पार्टी के हामी पार्टी से टिकट न मिलने पर ऐन इंतखाबात से कबल मजलिस पार्टी से टिकट हासिल करते हुए जमात साल कौम मिलत का दर्द रखने वाले मोहम्मद अयूब खान ने वार्ड नंबर 34 से मजलिस पार्टी से मुंतखब होने पर आज हलफ बर्दारी के बाद सियासत टीवी के नुमाइंदे मुजाहिद आदिल से बात करते हुए वार्ड के अवाम का शुक्रिया अदा किया और जिस उम्मीद से उन्हें वोट दिया अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देंगे। कहते हैं गुरूर का सर नीचो, इसकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं। अल्लाह के यहाँ देर हंदे नहीं। रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद डी अरविंद बल्दिया इंतखाबात में अपने हल्के पार्लियामेंट से 3 बल्दियात अपने मुकामी निज़ामाबाद और जिले गसियाल के रायकल मंडल मेटपली में बीजेपी के कौंसलर मुंतखब आवाज़ अक्सरियत हासिल करने के बावजूद एक भी बल्दिया पर कब्जा करने से महरूम हो गए।
जिले जगतियाल में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान हिकमत अमली ने 2 बल्दिया मिटपल्ली और रायकल मंडल बल्दियात पर बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन का ओहदा हासिल करने से महरूम कर दिया। रायकल बल्दिया में 12 के मुंजमिला 5 पर बीजेपी और मिटपल्ली बल्दिया में 22 के मुंजमिला 10 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल करते हुए बातिशगर के मौक़िफ़ के बावजूद कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी हिकमत अमली के जरिए ड्रामे अंदाज में बीजेपी को रुकने में कामयाब हो गए। रायकल मंडल में बीआरएस और कांग्रेस सिर्फ 3-3 पर कामयाब होने के बाद बीआरएस को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया गया, जबकि मिटपल्ली में कांग्रेस ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ओहदा हासिल कर लिया। संगरेडी बल्दिया के 38 मुंतखब अराकीन को हलफ दिलाया गया। कोना वनीता संगरेडी बल्दिया चेयरपर्सन की हैसियत से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हो गई। हाफिज शेख शफी वाइस चेयरमैन बल्दिया की हैसियत से मुंतखब होते हुए अपना हलफ लिया। गढ़वाल एक्शन ऑफिसर ने रियासती सतह पर मुनक़िदा म्यूनसिपल इंतखाबात में जीतने वाले कौंसल की हलफबर्दारी की तक़रीब के दौरान गढ़वाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन के तौर पर जयलक्ष्मी और शंकर को नायब चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया। जोश और खरोश के दरमियान गढ़वाल जिले की गढ़वाल म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन की जीत थी। हैदराबाद सिटी पुलिस में इंतजामी बुनियादों पर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए 63 इंस्पेक्टरों के अचानक तबादले कर दिए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं और हिदायत दी है कि ये तब्दीलियां फौरी तौर पर नाफिज अमल होंगी। उन अहकाम के मुताबिक स्पेशल ब्रांच में खिदमात अंजाम देने वाले कई अहदेदारों को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पर नई जिम्मेदारियां दी गई है। इसके अलावा टास्क फोर्स, ट्रैफिक ब्रांच, साइबर क्राइम, CCS, IT सेल, भरोसा सेंटर, शी टीम, जुवेनाइल ब्यूरो और PCR जोन्स में भी नए इंस्पेक्टरों का तयन किया गया है। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में वेटिंग लिस्ट में मौजूद अहदेदारों को भी मुख्तलिफ अहम शोबों में तैनात कर दिया गया। उन अहकामात में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदार फौरी तौर पर अपनी नई तैनाती के मकामात पर चार्ज संभालें। इसे सिटी पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने और इंतजामी ढांचे को मजबूत करने की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। तेलंगाना को आलमी टेक बायो शोबे में एक ताकतवर मरकज के तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए हुकूमत ने 2 रोज़ा बायो एशिया साल 2026 कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये बावखार आलमी कॉन्फ्रेंस कल 17 फरवरी से हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि HICC में शुरू होगी, जो 18 फरवरी तक जारी रहेगी। लाइफ साइंस और हेल्थ केयर के शोबे पर मरकूज इस आलमी समिट का इफ्तिताह तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनअत व IT श्रीधर बाबू मुश्तरका तौर पर करेंगे। इस साल कॉन्फ्रेंस का मौजू टेक बायो एनलिस्ट, AI और ऑटोमेशन बायोलॉजी का इनकलाब रखा गया है। इस 2 रोजा इवेंट में दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक से 3000 से ज्यादा मंदोबैन शिरकत कर रहे हैं, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंसों में से एक बनाता है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के शोबों में मसनूई ज़हानत के असरात, जदीद साइंसी इजादात और आलमी बायो इकोनॉमी को मजबूत बनाने जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल करना है। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर के तौर पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली के उमारानी मुंतखब हो गई, जबकि डिप्टी मेयर के ओहदे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉरपोरेटर सलमा तहसीन को कामयाबी हासिल हुई। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद शहर की बल्दी सियासत में नई सफबंदी देखने में आ रही है, जिसे मुकामी सतह पर कांग्रेस और मजलिस के दरमियान इश्तराक अमल की पेशरफ करार दिया जा रहा है। तेलंगाना में अपना मकान हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासत में मकानात की तामीर के लिए फंड जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे तवील अरसे से रुके हुए तामीराती कामों के दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। मरकज़ी हुकूमत PM आवास योजना के तहत तेलंगाना में मुकम्मल शुदा डबल बेडरूम मकानात के लिए अपना हिस्सा जारी करने के लिए तैयार है। रियासती हुकूमत उन फंड्स को उन मकानात की तकमील के लिए इस्तेमाल करेगी जो बजट की कमी के बाइस अधूरे रह गए थे। इत्तलात के मुताबिक मरकज ने 564 करोड़ रुपए जारी करने से इत्तेफाक किया है। हाल ही में दहली का दौरा करने वाले रियासती हुकाम ने मरकजी अर्बन हाउसिंग हुकाम से मुलाकात करके बकायाजात की फौरी इजराई की दरख्वास्त की थी, जिस पर मुस्बित रद्दअमल सामने आया था। आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में 1,45,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर शुरू की गई थी, जिनमें से अब तक 60,000 मकानात मुस्तहिकीन में तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद 30,000 मकानात तकसीम के लिए तैयार हैं, जबकि बकिया मकानात मुख्तलिफ मराहिल में ज़ेर तामीर है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए भी अपना हिस्सा फराहम कर रही है। उन फंड्स की इजराई से रियासत में मकानात की तामीर की रफ्तार तेज हो गई है और वो लोग जिनके पास मकान नहीं है उन्हें जल्द ही छत मैसर हो सकेगी।
हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक पेशेवर बाइक राइडर इतवार को नलगुंडा जिले के चुटियाल के करीब कौमी शाहरा पर पेश आने वाले एक अफसोसनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त रितेश रेड्डी के तौर पर हुई है, जो जुबली हिल्स का रहने वाला था। वो हाल ही में हैदराबाद से तकरीबन 30 बाइकर्स के ग्रुप के साथ आंध्र प्रदेश के बापटला बीच तक बाइक राइडर पर गया था। इत्तलात के मुताबिक रितेश रेड्डी अपनी तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत की BMW मोटरसाइकिल पर वापस हैदराबाद आ रहा था कि तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और कौमी शाहरा पर उलट गई। शदीद चोटों के सबब वो मौके पर ही दम तोड़ गया। रितेश गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरसों से पेशेवर मोटर क्रॉस राइडर के तौर पर सरगर्म था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि हादसे की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स अपने वक्त के हमरा पीर की सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, वज़ीर नारा लोकेश समेत मुतादिद वज़रा और आला हुक्काम ने उनका प्रतिफाक इस्तकबाल किया। शदीद धुंध के बाइस तैयारा तकरीबन 15 मिनट तक फिदा में गर्दिश करता रहा। ताहम ATS की इजाज़त के बाद हिफाजत लैंडिंग मुकम्मल हुई। एयरपोर्ट से इस्तकबाल करने वाला वफ्द अमरावती के करीब वाक़े सेक्रेटेरिएट रवाना हुआ, जहां वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू, बिल गेट्स और उनकी वफ्द का खैर मकदम किया। बाददा वफ्द के साथ आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गेट्स फाउंडेशन के ताबन से रियासत में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जारी मनसूबों की तौसी पर तबादला ख्याल किया गया। दो दिनों से जारी ड्रामाई सूरत हाल के दरमियान करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिलाखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास मेयर के तौर पर मुंतखब हो गए, जबकि डिप्टी मेयर भी बीजेपी का है। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास को 34 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार आलूला नर्मदा को 21 वोट मिले। 13 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास मेयर मुंतखब हुए। करीमनगर के डिप्टी मेयर के तौर पर यादगिरी सुनील राव मुंतखब हुए। BRS ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 30 नशिस्तें जीतने के बाद आम ख्याल था कि मेयर की कुर्सी बीजेपी को मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त में सियासी हालात तेजी से बदलने लगे थे। इसी दौरान कल रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेयर कौन बनेगा इसका फैसला कल हो जाएगा, और उस वक्त दौड़ में कांग्रेस पार्टी आगे रही। उस बयान के बाद बीजेपी और बंडी संजय के हामियों में बेचैनी बढ़ गई थी। पूनम प्रभाकर ने कहा था कि सियासत करना उनकी जमात का हक है और वो मेयर की कुर्सी जरूर हासिल करेंगे, लेकिन आज सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। बहरहाल बीजेपी ने करीमनगर कॉर्पोरेशन पर अपना परचम लहरा दिया। इन बदलते हालात के पेश नज़र BRS ने न किसी जमात की हिमायत करने और न ही मेयर इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया। फार्मूला ई रेसिंग मामले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो को उस वक्त अहम कामयाबी हासिल हुई जब मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर IAS अहदेदार अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त दे दी। मरकज़ी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आगाज़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रियासती हुकूमत के जरिए मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए फार्मूला ई रेसिंग मामले में अरविंद कुमार के अहम रोल का हवाला दिया और उनके प्रोसिक्यूशन की इजाज़त तलब की थी। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद दिसंबर साल 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेसिंग मामले की जांच का आगाज़ किया था। साबिक वजीर KTR, सीनियर IAS अहदेदार अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तवस्सुस से जारी किए जाने वाले अइमा व मुअज्जिनीन के मुशाहिरे की इजराई में होने वाली ताख़ीर के नतीजे में ज़ायद 9000 अइमा व मुअज्जिनीन मुआशी मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से उनके मुशाहिरे की इजराई के सिलसिले में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और आइंदा अब अंदरून चंद यौम माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि रियासत भर के अइमा व मुअज्जिनीन के लिए इंतहाई मसरूफियत का होता है। लेकिन इस बात का एहसास शायद महकमे अक़लियत बहबूद को क़तई तौर पर नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल महकमे अक़लियत बहबूद के आला अहदेदारों के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड को तवज्जो दहानी करवाते हुए माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ से क़ब्ल अइमा व मुअज्जिनीन का मुशाहिरा जारी करने का मुतालबा किया जा रहा था। बताया जाता है कि रियासत में अक़लियत क़ायदीन, जो कि पेशरो हुकूमत के दौर में अइमा व मुअज्जिनीन के मुशाहिरे की इजराई में होने वाली ताख़ीर पर हंगारामाई करते थे, वो अब मुशाहिरे की अदम इजराई पर हुकूमत की मजबूरियाँ पेश करने लगे हैं, जिसके नतीजे में अइमा व मुअज्जिनीन में भी शदीद नाराज़गी पाई जाने लगी है, क्योंकि वो अपनी शिकायत के साथ उन्हीं लोगों से रुजू हो रहे हैं जो कि साबिक़ में उनके लिए आवाज़ उठाया करते थे और हुकूमत और वक्फ बोर्ड पर दबाव डालते हुए
अइमा व मुअद्दिनीन के मुशायरे की इजराई के लिए मजबूर किया करते थे, लेकिन तेलंगाना में इक़्तिदार की तब्दीली से कबल इस बात का ऐलान किया गया था कि रियासत में अगर कांग्रेस की हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो अइमा व मुअद्दिनीन को दिए जाने वाले मुशायरे में इजाफा करने के अलावा उनकी तादाद में इजाफा करने के इक़दाम और बापाबंदी मुशायरे की इजराई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इक़्तिदार की तब्दीली के बाद उन तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया और अब भी रियासत में अइमा व मुअद्दिनीन के मुशायरे की इजराई के सिलसिले में होने वाली ताख़ीर पर जवाब देने के लिए कोई नहीं है और ना ही अइमा व मुअद्दिनीन की तादाद में इजाफे के सिलसिले में कोई इक़दाम किए गए, बल्कि मुशायरे में इजाफे के मुतालिक मंसूबे पर भी अमलावरी के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।